one you're probably familiar with, and that is spinning some object around your head with a rope. So here I have a gentleman with a rope and there's a ball hanging off the end of it. And what we're going to do is going to simulate what he's doing, and that is he's spinning it around. So as you can see, what we have here is a ball that is spinning around in a circle. Now how would you describe that motion? Well, first of all, the obvious, it's travelling in a circle. But at any particular time, the actual ball is moving in a velocity that is a tangent to that circle. So if I show you the velocity and turn that on, you can see that the velocity at this point is always a tangent to that circle. Now if the ball continues to turn, then you can see that the velocity also changes as a result. Because as you know, velocity is a vector quantity. That is, it has both a size and a direction. And so although in this example, I'm assuming that the ball is moving around at a constant rate, that the size of the velocity is constant, because of the fact that its direction is constantly changing, then we say that the velocity is constantly changing as well because of the fact that its direction is changing. Now, what does that mean? Well, if a velocity is changing with respect to time, we say it is accelerating. And the only reason something can accelerate is if there is some sort of net force exerting on that. Now, what is that net force? Well, in this case, the force that is causing the object to continually change direction is a force that the gentleman is applying via the string. If we now ask the question, what is this force? We have a force that is pointing towards the center of the circle. So as we rotate it around, you can see that the velocity is constantly changing, and so is the force. Not the strength of the force. The strength of the force is constant as it moves around, but the direction is constantly changing. But the thing is, it's this force that causes the object to continually change. That is, as long as that force exerts itself, the velocity continues to change in direction. The other critical thing, though, is that the angle between the velocity vector and the force vector is always 90 degrees. And that, in essence, gives you the definition of something undergoing circular motion. An object is moving with a certain velocity and experiencing a force that is always at right angles to the direction of the velocity. And hence the object moves in a circle. Now, this force, of course, is a constant value in terms of its magnitude, and it is causing the object to continually change direction. We call this force the centripetal force. It's important you pronounce it correctly because it is often confused with another term, which I'll refer to in a moment. This centripetal force always points to the center. Now, often people think, well, this centripetal force needs to be at any one time. Now, what would happen if suddenly the walls were to disappear at this junction? So if the walls would disappear, this force here would disappear, and as a result you would continue to move in a straight line. Now some people get confused with another apparent force that they experience, and that is a force that is often referred to as a centrifugal force. But I want to make it perfectly clear, there's no such thing as this centrifugal force. And this is the force that often people feel that is exerted in that direction. Now let me make it first of all clear. The force that you are experiencing, which is the normal to the surface, is the centripetal force, which in this case is pointing towards the center along here. Of course, your velocity is heading in this direction. And yet you feel like you're being flung out. But according to your frame of reference, that's the direction you feel you are flung out. But there is actually no force you are actually experiencing in that direction. The force you are experiencing is actually inward. It's a bit like this. You are being flung towards the center of the Earth due to Earth's gravitational field. And the Earth is in the way, and so the Earth applies a force upward. So the pressure that you feel on your backside if you're sitting or on your feet if you're standing is not a force downward, as often misunderstood, but it's actually a force upward. And so too here, this is a force that is, the force you're experiencing is this force here. So what is this here? Well, you're feeling like you're being flung out, but in actual fact, you're in a rotational frame of reference. You are actually flung out at a tangent. But because of the spinning, that has the sensation of going outwards. Secondly, you need to understand that anything that is going outward, that is only the force of you acting on the wall. So the wall is experiencing this force, but remember, we're interested in the forces on you. So it's really important that this is not a force, a real force. If this centripetal force were to suddenly disappear, then this is not existent either. And as a result, you would continue off in a tangent to the circle. So let's make it clear. It's centripetal. हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हुए चलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ,
एंगुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ और एंगुलर एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट से हम क्या समझते हैं। तो मान ले कि एक सरफेस है, इस सरफेस में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे किसी तरह का फोर्स लगा और ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम जो डिस्प्लेस होता है ये ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक डायरेक्शन भी होता है, हमें ये पता है। और इसी को आप कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, और ये रेफरेंस पॉइंट मान ले R है, पॉइंट R। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू 0 था और यहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया जब टाइम t हो गया। तो इसे, इस डिस्प्लेसमेंट को जो कि s है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि इनिशियली इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एक रेफरेंस पॉइंट से कितना था, हमने इसे रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो यहां से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ इतना था। चलिए इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट SI मान लेते हैं और फाइनली ये कहां तक डिस्प्लेस्ड हुआ, तो फाइनली ये यहां तक डिस्प्लेस्ड हुआ S फाइनल। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये होगा S फाइनल माइनस S इनिशियल। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दे, तो यहां पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो करेगा। उसी तरह से अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पर इसे एक्सिस बनाते हुए एक डिस्क जो है ये रोटेट कर रहा है, ये हो गया डिस्क, ये यहां से ये एक्सिस पार हुआ, ये इसका सेंटर है, ये रोटेट कर रहा है। ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो एक बार मैं यहां पर भी इसे ड्रॉ कर लेता हूं। ये ऊपर से हम इसे देख रहे हैं, डिस्क सर्कुलर डिस्क है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है कुछ ऐसा, और ये इसका z एक्सिस है कुछ ऐसा। सो ये जो है डिस्क ये XZ प्लेन में है, तो ये x एक्सिस और ये z एक्सिस ऊपर से देख रहे हैं। चलिए ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस तो हमें दिखेगा नहीं, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो यहां पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो, यहां पर देखिए ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा, एंगुलर मोशन है, यहां पर ये घूम रहा, रोटेट कर रहा, रोटेशनल मोशन है। तो अगर इस पहले तरीके को देखें जहां डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किया था यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, तो उसी तरह से अगर देखें जब टाइम 0 था उस समय हमने एक पॉइंट देखा यहां पर है। सो यहां एक पॉइंट है, इस डिस्क का एक पॉइंट जहां टाइम इज इक्वल टू 0 था, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट को। तो अभी ये यहां पर है। कुछ देर बाद चूंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो कुछ देर बाद हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट यहां तक पहुंच गया है। सो ये कब देख रहे हैं, t इज इक्वल टू t, इस समय ये यहां तक पहुंच गया है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे कुछ इस तरह से मेजर किया जाता है कि वो सेंटर में एक्सिस जहां से पास किया है वहां वो कितना एंगल बना रहा है। तो ये जो है ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये थीटा है, तो ये हो गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका एक डायरेक्शन होगा। उस डायरेक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, वो हम राइट हैंड रूल से मेजर करते हैं। जिस प्लेन में ये डिस्क घूम रहा है उस प्लेन में राइट हैंड को, दाहिने हाथ को हमें इस तरह से प्लेस करना है कि मुड़ी हुई उंगलियां ये जो रोटेशन है इस रोटेशन को इंडिकेट करे। यहां पर ये पॉइंट यहां से यहां तक पहुंचा है तो इस डायरेक्शन में रोटेशन है, इस डायरेक्शन को इंडिकेट करे 4 मुड़ी हुई उंगलियां दाहिने हाथ के, और आपका थंब जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वही होगा यहाँ इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो इस फिगर में अगर आप देखें, अगर राइट हैंड को इस तरह से प्लेस करें कि मुड़ी हुई उंगलियां इस डायरेक्शन में इंडिकेट करे तो फिर आपका थंब जो है ये y एक्सिस की तरफ इंडिकेट करेगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो अभी इस केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये y एक्सिस को इंडिकेट करेगा। तो ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब जैसे हमने दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट को पता किया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को या फिर कह ले ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट को, उसी तरह से यहां पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एक रेफरेंस लाइन कंसीडर कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, रेफरेंस लाइन मान ले। अब इनिशियली जब टाइम 0 था उस समय किसी भी एक पॉइंट को जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे यहां पर इस ब्लॉक को हम ऑब्जर्व कर रहे थे, यहां पर एक पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो ये पॉइंट इनिशियली कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, तो ये एंगल जो बना रहा था ये मान ले θ1 था, और फाइनली ये जितना एंगल बना रहा है, मैं थोड़ा कलर बदल दूं, फाइनली ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल θ2 है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये होगा θ2 माइनस
थीटा 1। देखिए अगर सेम प्लेन की बात हो, एक ही प्लेन में ये घूम रहा है, ये अपना प्लेन चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये ऐसे ही इसी प्लेन में घूम रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि समय के साथ साथ ये अपना प्लेन जो है इस प्लेन को बदल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, ये उसी प्लेन में घूम रहा, तब तो ये ठीक है। अगर वो अपना प्लेन चेंज कर ले तो फिर यहां पर जो होगा ये वेक्टर एडिशन होगा। यहां पर हमें सिंपली वेक्टर एडिशन मुझे नहीं कहना चाहिए, यहां पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। सो वेक्टर रूल फॉलो करेगा तब। सो इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या समझते हैं। जैसे कि मान ले उसी तरह से अगर मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर एक सरफेस है, मान ले यहां पर एक ऑब्जेक्ट, ये बराबर समय में बराबर डिस्प्लेसमेंट अगर इसका होता है तभी हम इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो बराबर समय में बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा, हमने देखा टी समय में ये कुछ इतना आगे बढ़ गया, कितना आगे बढ़ गया या फिर कहें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो हमने देखा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ एस, और कितने समय में, शुरुआती समय में टाइम को 0 मानते हैं, और जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर तब हमने देखा टाइम इज इक्वल टू टी। तो इस केस में हम सिंपली ये कहते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। लेकिन इसका एक बेहतर तरीका है, अगर बराबर समय में बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो हम इस तरह से इसे इवैल्यूएट नहीं करते हैं, बल्कि हमें एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होता है फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम कैसे कंसीडर करते हैं, इसी को हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि जब टाइम इज इक्वल टू टी था उसके थोड़े ही देर बाद ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहां पर पहुंच गया। कितने समय बाद, बहुत ही कम समय बाद, dt समय बाद। और इस dt समय में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds। तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू ds dt, टाइम रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। उसी तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम अगर इसी डिस्क को ऊपर से देखते हैं और ये है डिस्क, और मान ले ये डिस्क ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में जैसे पिछले केस में रोटेट कर रहा था, और साथ ही साथ मान लेते हैं कि ये बराबर समय में बराबर घूम रहा है, हमेशा एक ही उसका रेट है घूमने का, ऐसा नहीं कि कभी धीरे घूम रहा कभी तेज घूम रहा। उस केस में हम ये कहते हैं कि मान ले कि टाइम इज इक्वल टू 0 जब था तब हमने एक पॉइंट को, इसी डिस्क में एक पॉइंट को यहां पर लोकेट किया था, कुछ देर बाद हमने देखा पॉइंट यहां पर आ गया, ये इसका सेंटर है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है, जैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहां पर कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एस से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था टी समय में, तो हम कह सकते थे v इज इक्वल टू एस ओवर टी। उसी तरह से मान ले बराबर अगर इसका रोटेशन हो, हमेशा बराबर घूम रहा हो, तो हम देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 में पॉइंट यहां था, और जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर फाइनली तो टाइम t है, और हमने देखा इस समय में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हमें ये मिला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जब बराबर घूमे तब हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये बराबर हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय टी के। लेकिन अगर इसका घूमने का रेट बराबर ना हो, तो जैसे हमने यहां पर किया वैसे ही हम करते हैं, तो एक बहुत छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर कर लेते हैं, और हम देखते हैं उस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में थोड़े ही देर बाद, बहुत बहुत कम समय बाद ये जो पॉइंट है ये यहां तक पहुंच गया। कितने समय बाद, dt समय बाद, ये जो समय लगा ये dt है, और इतने समय में ये कितना रोटेट कर गया, इतने समय में ये जो रोटेट कर रहा है, जो एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स्ट्रा, ये है d थीटा। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि ओमेगा ये जो है ये है d थीटा dt, टाइम रेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर ध्यान रखें ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, जैसे कि यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी और ये भी। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब यहां पर एक्सेलरेशन हम कैसे पता लगाते हैं, तो मान ले उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, सो टाइम इज इक्वल टू 0, इस समय हमने देखा कि ब्लॉक जो है ये यहां पर है, और कुछ देर बाद ये ब्लॉक जो है ये यहां तक पहुंच गया है। सो कितने समय बाद, t समय बाद। सो जब टाइम इज इक्वल टू 0 था इनिशियल समय में, जब टाइम को हम 0 माना तब ये यहां पर था, t समय बाद ये यहां पर पहुंच गया। हमें ये मानना होगा कि इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इस केस में हम इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो हमें इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है, जो बहुत छोटे समय में बहुत छोटा सा चेंज जो है उसे कंसीडर करना होता है। तो फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि इसका वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है, और यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसका जो वेलोसिटी था ये था v इनिशियल, और यहां पर जो वेलोसिटी है ये v फाइनल है।
तो चेंज इन वेलोसिटी जो है यहां पर, चेंज इन वेलोसिटी ये है v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इस केस में हम एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना टाइम, 0 से लेकर t तक, सो टाइम जो है वो t है। अब अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो हमें क्या करना होता है? एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड कंसीडर करना होता है, टाइम इंटरवल कंसीडर करना होता है। और हमने देखा कि यहां से t समय के बाद, dt समय बाद ये जो ब्लॉक है ये यहां तक पहुंच गया। कितना समय लगा? dt समय लगा। कहां से? यहां से यहां तक पहुंचने में। तो जब ये यहां पर था तो इसका जो वेलोसिटी था vf था। अब dt समय बाद जो ये यहां पर पहुंचा, यहां पर इसका जो वेलोसिटी हो गया ये थोड़ा सा बढ़ गया और ये हो गया vf प्लस dv। तो इतना वेलोसिटी का चेंज हुआ इतना सा छोटे से समय में। तो इसी एक्सीलरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv dt, टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी। उसी तरह से यहां पर रोटेशनल मोशन में भी हम वही कर सकते हैं कि अगर मान ले कि यहां पर ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और अभी इस समय इस पॉइंट का जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है ओमेगा आई। कुछ देर बाद हमने देखा कि ये यहां पर पहुंच गया, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है ये ओमेगा एफ है। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन बनेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। सो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। सो कितने समय में हुआ? मान ले यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0 था और यहाँ टाइम इज इक्वल टू t था। सो 0 से t तक मतलब t समय में। तो इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन ओमेगा इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम कितना था? t था। ये तो हम तब कर सकते हैं जब जो एंगुलर एक्सीलरेशन हो वो कांस्टेंट हो। लेकिन अगर एंगुलर एक्सीलरेशन ये वेरिएबल रहे तो हमें एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करना होता है। सो t इज इक्वल टू t जब था तो ये पॉइंट यहां पर था। अब बहुत कम समय बाद ये पॉइंट यहां पर पहुंच गया और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ ये है d ओमेगा। मतलब इतना से ये घूम रहा था, अब इतना और बढ़ गया। कितने समय में? ये जो टाइम का इंटरवल है ये टाइम इंटरवल है मान ले कि dt। तो इस केस में हम कहेंगे कि अल्फा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू d ओमेगा dt। ध्यान रहे यहां पर सारे के सारे क्वांटिटीज जिसके बारे में हमने बात किया है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या फिर वेलोसिटी हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो या एंगुलर एक्सीलरेशन हो, सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं।